all. Hope you all are doing very good. Today students, let's start a new chapter of class 8, which is chapter number 10 about water and air pollution. So in this chapter, we are going to discuss the two major types of pollution in our environment, that is about air and water. Okay, let's start it. See, we have seen that humans are independent on the living and non-living environment for their survival. So human must live in harmony with the environment and maintain the balance of the environment, affecting our environment adversely in a number of ways to fulfill our needs. So student, what they saying कि जैसे कि हमने देखा है कि human beings अपने survival के लिए सभी living and non-living factors के ऊपर dependent है, यानी कि हमारा जो living and non-living environment है उसके ऊपर हम living beings और we human beings are dependent for our survival. So for that purpose, human beings को क्या करना चाहिए? Human beings को एक harmony में रहना चाहिए अपने environment के अंदर, and उसके साथ साथ हमें environment के balance को maintain करना चाहिए, ठीक है? यानी कि वो सारी चीजें जो हमारे environment को adversely affect करती हैं, उन सभी चीजों को हमें एक balance में maintain रखना चाहिए, and we should live in harmony with our environment. Okay, so as a result, see हमारी जो activities है students, वो हमारे environment को डिफरेंट वेज में अफेक्ट करती है. ओके, जिसकी वजह से द क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल हैज ड्रास्टिकली गॉन डाउन. एयर, वाटर, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डे बाय डे क्या हो रही है, वो एडवर्स होती चली जा रही है. अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, काफी बड़े नंबर पे जो प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज हैं वो डिसअपीयर हो रहे हैं. व्हाई? ड्यू टू रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट. देन नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस इज इंक्रीजिंग. ओके, यानी कि डिजीजेस, बीमारियों से परेशान होने वाले लोगों की जो नंबर है, संख्या है, वो क्या है, बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच इज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट. नाउ नेक्स्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ पोल्यूशन. व्हाट इज पोल्यूशन? The contamination of environment with harmful, that is toxic and poisonous substances due to certain natural phenomena and human activities is called environmental pollution or simply pollution. यानी कि एनवायरनमेंट का कंटेमिनेट होना, एनवायरनमेंट का क्या होना, खराब होना, मिक्स हो जाना. एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे हार्मफुल, टॉक्सिक एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं हमारे, या तो किसी नेचुरल फिनोमेना की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जिससे एनवायरनमेंट क्या होता है, कंटेमिनेट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन और सिंपली एनवायरनमेंट. ओके, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन इज देयर. तो पोल्यूशन को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लाइक एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट इज सॉइल और land pollution, then we have water pollution, noise pollution. So these are the different types of environmental pollution, but here we are going to discuss about air and water pollution only. Okay, so first of all we have to discuss about air pollution. So the air surround us is a mixture of various gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, methane, ozone and water vapor. So हमारे surrounding में जो air है student, वो इन सभी various types of gases का क्या है, mixture है, like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, argon, methane, ozone, water vapor. These all things are mixed in our air. All these gases are present in the air at a particular ratio. And ये सभी gases हमारे air में एक particular, एक definite ratio में है. If other unwanted substances are added to air, then an imbalance is caused in the air. लेकिन अगर इन substances के अलावा कुछ और भी unwanted substances अगर air में add हो जाते हैं, तो उससे हमारे air में एक imbalance होना शुरू हो जाता है. So what is air pollution? Air pollution is the contamination of air by undesirable particles and gases known as air pollutants. Okay, air pollution क्या है? Air का contaminate होना. जब हमारी air which is surrounding us वो contaminate होती है कुछ undesirable particle and gases की वजह से. इन undesirable particle and gases को बोला जाता है air pollutants, because what they do, they contaminate the air, and this is known as air pollution. So कुछ common air pollutants they have given you, like dust, soot particles, chemical fumes, CFC, that is chlorofluorocarbons, and gases such as carbon monoxide, sulfur dioxide and oxides of nitrogen. These are the different types of pollutants which affect or which makes our air contaminated. Now types of air pollution. अब air pollution भी further two types का होता है. Number one, gaseous air pollutants and other is particulate air pollutants. So ये air pollutants भी दो major types के होते हैं. So first of all, we are going to discuss about gaseous air pollutants. So gaseous air pollutants कौन से होते हैं, जो कि gaseous state में होते हैं at normal temperature and pressure. They are called gaseous pollutants. For example, sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide. Okay,
SO2, CO2, NO2, CO, these are gaseous pollutants because ये एक normal temperature and pressure पे gaseous state में exist करते हैं. Then we have particulate air pollutants. Particulate pollutants are in the form of tiny particles. वो pollutants जो tiny यानी कि छोटे छोटे particles की form में होते हैं उन्हें particulate pollutants कहा जाता है. Okay, particulate pollutants हमारे solid और liquid किसी भी state में हो सकते हैं. Particulate matter usually जो है हमारे atmosphere में suspended रहते हैं and therefore they are also termed as suspended particulate matter, that is SPM. So कुछ typical air pollutants यहाँ पे mentioned है in this table. They have given you some typical particulate air pollutants. You can see this is sulfur dioxide. ये आपके सारे gaseous pollutants given है and these all are particulate pollutants. ठीक है, तो gaseous में आपको given है sulfur dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, ozone, hydrogen sulfide and methane. These all are gaseous pollutants. And if we talk about suspended particulate matter, which are in a state of solid or liquid, right? So these are what? Smoke, dust, sand. This is it's sand, not stand. Okay. Then cement dust, fly ash, that is coal dust, asbestos dust, unburnt hydrocarbons, smog, that is smoke plus fog. These all are SPM, that is suspended particulate matter. Sources or causes of air pollution. अब air pollution के क्या-क्या sources हैं, क्या-क्या causes हैं? So air pollution usually आपके दो sources की वजह से होता है, by natural sources और by man-made sources. अब natural sources क्या है students? Natural sources वो sources हैं जो कि nature के through होते हैं. Okay, like the releasing of carbon particles and ash during forest fire pollute the air. Forest fire के दौरान जो carbon particles release होते हैं, जो ash produce होती है, वो सब भी क्या करते हैं हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं and this is a natural source of air pollution. Pollen grains, the pollen grains released by plants keep floating in the air to pollute it. ठीक है, फ्लावर्स के थ्रू जो pollen grains रिलीज करते हैं होते हैं वो भी हमारे एयर में फ्लोट करते हैं and एयर को पोल्यूट करते हैं. नेक्स्ट, द ब्लोइंग ऑफ डस्ट स्टॉर्म. डस्ट स्टॉर्म के ब्लो होने से डस्ट पार्टिकल्स जो है वो एयर में मिक्स होते हैं एंड एयर को पोल्यूट करते हैं. द वोल्केनोज रिलीज वेरियस गैसेस. जब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं तब उसके थ्रू भी काफी सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में एंड ऑल दीज गैसेस पोल्यूट अवर. ऑल दीज नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हैव वेरी लेस कंट्रीब्यूशन इन एयर पोल्यूशन, सो इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स आर नेग्लिजिबल. व्हाट दे सेइंग कि जितने भी नेचुरल पॉल्यूटेंट्स हैं इनका बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन होता है एयर पोल्यूशन में. ये एयर को पोल्यूट करते हैं बट नॉट वेरी मच. सो बिकॉज ऑफ देम जो इनके इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग्स पे वो नेग्लिजिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. सो नंबर वन वी हैव बर्निंग फ्यूज. सो बर्निंग ऑफ फ्यूज यानी कि जब फ्यूज को बर्न किया जाता है लाइक वुड, काउडंग के, कोल, कैरोसिन. सो इन सभी फ्यूल्स को जब होम्स में घर में हम बर्न करते हैं ये सभी फ्यूम्स एयर को पोल्यूट करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, फूड एंड एश. सेकेंडली वी हैव व्हीकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स यानी कि द एग्जॉस्ट गैसेस एमिटेड बाय मोटर व्हीकल्स. जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं उनके थ्रू जो एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो गैसेस भी एयर को पोल्यूट करती हैं. कैसे? by producing some harmful pollutants like sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide, unburnt hydrocarbons, lead compounds and next is nuclear power plant. Nuclear power plant भी air को pollute करता है by releasing radioactive radiations. Next we have deforestation. Deforestation also pollutes the air by increasing the amount of carbon dioxide. See students, plants का काम क्या होता है? Plants अपने photosynthesis process के लिए एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब करता है. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट ओनली. बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मींस व्हाट? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. जब हम ट्रीज को एक बड़े स्केल पर कट कर देते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. एंड डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं दे गेट डिक्रीज एंड ड्यू टू देयर डिप्रेशन the amount or the concentration of carbon dioxide in our air gets increased. Okay, and that is the major pollutant of. Next is mining. What is mining? Mining of coal and stone releases coal dust and stone dust to cause air pollution. यानी कि जब coal and stone की mining होती है तो उससे कुछ coal dust and stone dust produce होता है जो कि again हमारे air को pollute करता है. Next we have what? Thermal power plant. Thermal power plant क्या करते हैं? Electricity generate करते हैं by burning fossil fuels such as coal और natural gas. अब coal के अंदर स्टूडेंट सल्फर होता है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. ओके, देन अपॉन बर्निंग यानी कि जब आप कोल को बर्न करते हो तो उसके अंदर जो सल्फर का अमाउंट प्रेजेंट होता है वो बर्न होने पे क्या प्रोड्यूस करता है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है.
इन एडिशन, अब उसके साथ साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एश एंड सूट आर प्रोड्यूस। उसके साथ साथ क्या, जब कोल को बर्न करते हो तो काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एश एंड सूट भी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ब्लैक स्मोक कॉज करते हैं फ्रॉम द चिमनीज, एंड वो सारा ब्लैक स्मोक क्या करता है, एयर को पोल्यूट करता है, लाइक दिस यू कैन सी। Okay, this is the smoke from the thermal power plant. Next we have industries. Many industries produce chemicals. काफी सारी industries हैं जो कि chemicals produce करती हैं, and ये chemicals हमारे atmosphere में escape हो जाते हैं, causing air pollution. Okay, similarly इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स जो कि certain industrial activities के थ्रू रिलीज होते हैं, ये सभी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म स्मॉग। स्मॉग क्या है, स्मॉग एक कॉम्बिनेशन होता है स्मोक एंड फॉग का, एंड स्मॉग क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है। So these all are the man-made sources of air. Now effects of air pollutants on living and non-living things. अब air pollutants का living and non-living things पे क्या effect होता है, let's discuss about that. Number one, polluted air is unpleasant to breathe. Polluted air जो है हमारी breathing के लिए अच्छी नहीं होती है, इससे आपको respiratory problems हो सकती है। Secondly, ozone. Ozone क्या कहता है, ozone causes irritation. Ozone की वजह से nose and throat में irritation होती है। Traces of ozone in the air do not harm. See, एयर में ओजोन के जो ट्रेसेस है वो हार्म नहीं करते, बट अगर ओजोन का हायर कॉन्सेंट्रेशन होने लगता है, दैट इज अबाउट 0.1 ppm, तो तब आपकी ओजोन गैस टॉक्सिक हो जाती है एंड ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ओजोन जो है रबर प्रोडक्ट्स को भी अटैक। देन नेक्स्ट वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, लिविंग टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है, ईट्स अप लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को क्या करता है, खराब कर देता है, एंड जितना भी मार्बल है, ठीक है, यानी कि वो सारी बिल्डिंग्स या सारे स्टैच्यूज जो कि लाइमस्टोन या मार्बल से बने हैं, उन सभी को सल्फर डाइऑक्साइड डिस्ट्रॉय करता है, एंड आल्सो इट करोड्स द मेटल। अब सल्फर डाइऑक्साइड इज अ काइंड ऑफ पोल्यूटेंट ओनली, एयर पोल्यूटेंट, राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, अगेन अ काइंड ऑफ एयर पोल्यूटेंट। व्हाट डज इट डू, इट टार्निशेस सिल्वर ऑब्जेक्ट्स, जितने भी सिल्वर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टार्निश करता है, एंड जो लेड पेंट एंड पेंटिंग्स होती हैं उनको ब्लैकन कर देता है। Next we have carbon monoxide poisoning. Carbon monoxide, student, it is a poisonous, combines with the hemoglobin of our blood. Carbon monoxide हमारे blood में जो hemoglobin है उसके साथ combine होकर एक stable compound बनाता है, that is known as carboxyhemoglobin. Okay, now due to the formation of this compound, अब जब हमारी body में ये carboxyhemoglobin नाम का compound बनता है, उसके बाद जो हीमोग्लोबिन है इट इज अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन। उसके बाद हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक क्या ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इट कॉजेस सफोकेशन एंड मे इवन कॉज डेथ। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट, द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो, व्हाट डज इट डू, इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एयर, राइट, एंड द इंक्रीज लेवल ऑफ, एंड ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल है जो डे बाय डे इंक्रीज होता है एयर में, उससे सन के थ्रू रेडिएट होने वाली हीट जो है वो एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर ट्रैप हो जाती है ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड डज नॉट अलाउ, एंड इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या नहीं हो पाती, हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा से एस्केप आउट नहीं हो पाती, स्पेस में वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रैपिंग, यानी जो प्रोसेस है हीट, रेडिएटेड हीट को ट्रैप करने का ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, एंड ये जो फिनोमिना है ऑफ राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्लोबल। नेक्स्ट, द गैसेस व्हिच प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब वो सारी गैसेस जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, दीज आर द मेजर ग्रीन हाउस gases. Okay, and this phenomena is harmful for us. It affects the monsoon rain badly. See, global warming या greenhouse effects से monsoon rain भी काफी badly affect होते हैं। Okay, crop cultivation का pattern change हो जाता है। Melts the polar ice, जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा एक अलार्मिंग रेट पर, तो पोलर आइस मेल्ट होने लगते हैं, एंड इस आइस के मेल्ट होने से जो सीज एंड ओशंस का वाटर लेवल है वो राइज होता है, एंड इससे क्या, उधर जो लो लाइंग एरियाज है वहां पे फ्लड्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। So these are the effects of air pollution on the living and non-living things. Now, methods of checking air pollution. अब air pollution को check करने के, control करने के क्या-क्या methods है? Number one, we should use alternative sources of energy. So students, हम क्या कर सकते हैं? Energy के alternative sources को use कर सकते हैं.
instead of using fossil fuels like solar energy, hydropower, wind energy, nuclear energy. Okay, so इन सभी alternate forms of energy का आप use कर सकते हो instead of conventional sources of energy such as coal, and we should make use of unleaded petrol. हमें vehicles में unleaded petrol का use करना चाहिए. Above all, and इन सब के अलावा हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने की कोशिश करनी चाहिए. We should travel in buses, train, and also we should walk short distances. अगर थोड़े ही डिस्टेंस पे जाना है तो हमें वॉक करना चाहिए. And if you must take car, अगर आप कार लेते हैं तो आपको कार कूलिंग ट्राई अडॉप्टिंग यूरो स्टैंडर्ड्स. हमें यूरो स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना चाहिए एंड पोल्यूशन एमिशन नॉर्म्स से स्टिक करना चाहिए फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. दीज आर द अदर मेजर्स. We should make use of CNG. CNG is compressed natural gas, which is a kind of green gas. तो आपको इसका यूज करना चाहिए as a fuel. Then we should undertake tree plantation. यानी कि tree plantation हमें tree plantation से related जितने programs हैं यानी कि afforestation programs को हमें undertake करना चाहिए, like वन महोत्सव जो कि कब होता है? Every year in the month of July it is held. नेक्स्ट, नो बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. दिवाली फेस्टिवल के दौरान हमें क्रैकर्स बर्न नहीं करने चाहिए. एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मैरिजेस, शादी या किसी फंक्शन के दौरान भी हमें क्रैकर्स बर्न नहीं करने चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन दोनों ही कंट्रोल्ड होंगे. यूज एलपीजी, कोल एंड केरोसिन की जगह क्या हमें एलपीजी का यूज करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक ऑफ एसिड रेन. व्हाट इज एसिड रेन? See, burning of coal, petrol and diesel produces carbon dioxide, carbon monoxide, oxide of sulfur, oxide of nitrogen and unburnt hydrocarbons. So coal, petrol and diesel को burn करने से ये सारे harmful pollutants produce होते हैं and ये सारी oxides हमारे atmosphere में escape हो जाती हैं. The oxides of nitrogen and sulfur. अब ये जो नाइट्रोजन एंड सल्फर की ऑक्साइड्स हैं हमारे एयर में प्रेजेंट होती हैं, ये रेन वाटर के साथ डिसॉल्व होकर क्या प्रोड्यूस करती हैं? सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं. And the rain water containing dissolved oxide of sulfur and nitrogen is called acid rain. And एक ऐसा रेन वाटर, ऐसा बारिश का पानी जिसके अंदर सल्फर एंड नाइट्रोजन की डिसॉल्व ऑक्साइड्स होती हैं, उस रेन वाटर को एसिड रेन कहा जाता है. Now harmful effects of acid rain. Acid rain के क्या क्या harmful effects हैं? So acid rain काफी corrosive and harmful होती है for the living and non-living things both. Then secondly, it is quite harmful for the survival of fishes. ठीक है, fishes and जितने भी other aquatic life है उनके सर्वाइवल के लिए भी एसिड रेन काफी. सेवरल स्पीशीज, फिशेस के भी काफी स्पीशीज है जो कि एक्सटिंक्ट होती जा रही है ड्यू टू एसिड रेन. इट कॉजेस प्रीमेच्योर लीफ फॉल. प्लांट्स में प्रीमेच्योर लीफ की फॉलिंग होने लगती है, सॉइल एसिडिक होने लगती है. देन ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज. ठीक है, जितने भी लिविंग टिश्यूज है उन्हें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करती है एसिड रेन. सीमेंट, लाइमस्टोन, मार्बल ऑफ बिल्डिंग, दे ऑल गेट्स ईटन अप ड्यू टू एसिड रेन. And it also corrodes steel and the other metals. Acid rain damages old statues. जितने भी old statues हैं, old monuments हैं, etc. These all gets damaged due to acid rain. Next we come to the Taj. What they are saying about that? See, as we all know, Taj Mahal is among of the 7 wonders of the world. हमारे world में 7 wonders में से एक क्या है? ताज महल है, जो कि अपने tourist attraction के लिए, it is the most famous tourist attraction of भारत. बट दिस फेमस मॉन्यूमेंट, लेकिन ये जो फेमस मॉन्यूमेंट है वो क्या होता जा रहा है? डिसकलर्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. यानी कि ईयर बाय ईयर ये जो ताज महल है, द फेमस मॉन्यूमेंट, इट इज गेटिंग व्हाट? डिसकलर्ड. इसका कलर चेंज हो रहा है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. आगरा, आगरा क्या है? आगरा इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन जो है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रीजन, वो है आगरा. जितने भी इंडस्ट्रीज है लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल इंडस्ट्रीज, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ये सभी इंडस्ट्रीज जो आगरा में लोकेटेड हैं, ये क्या करती हैं? कुछ पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करती हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये सारी ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती हैं एंड कुछ हार्मफुल एसिड प्रोड्यूस करती हैं सच एज सल्फ्यूरस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड. नाउ दीस एसिड मिक्स विद रेन. ये सारे एसिड रेन के साथ मिक्स होते हैं एंड देन दे फॉल डाउन, फिर नीचे वापस आते हैं एज अ फॉर्म ऑफ एसिड रेन. दिस एसिड रेन, अब ये एसिड रेन क्या करती है? मॉन्यूमेंट्स में जो मार्बल है उसको कोरोड कर देता है. एंड दिस रेन इज टर्निंग द कलर ऑफ व्हाइट मार्बल ऑफ ताजमहल टू येलो. एंड इसी रेन की वजह से जो ताजमहल का व्हाइट कलर है वो क्या होता जा रहा है? येलोइश कलर में चेंज होता जा रहा है. एंड दस द फेमस मॉन्यूमेंट, इस तरीके से जो फेमस मॉन्यूमेंट है वो अपनी ब्यूटी को, सुंदरता को क्या कर रहा है? डे बाय डे लूज कर रहा है. ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत. अब हमारे भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, इट हैज ऑर्डर्ड, इन्होंने क्या किया है? ऑर्डर किया है इंडस्ट्रीज को कि वो क्या क्लीनर फ्यूल को यूज करें लाइक एलपीजी, सीएनजी एक्सेट्रा टू सेव दी. नेक्स्ट इज नाउ वाटर पोल्यूशन. सो वी हैव
completed with air pollution, and now next we are going to talk about water pollution. So water is essential for all living beings. So water भी students सभी living beings के लिए essential है. Okay, water is a necessary requirement for agriculture, industry and navigation, right? पोटेबल और ड्रिंकिंग वाटर. स्टूडेंट्स, जो पोटेबल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा पानी जो पिया जा सकता है उसे पोटेबल वाटर कहते हो. एंड पोटेबल वाटर आपको कैसा होता है? कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस होता है एंड इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होती है. इट इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर, आपको जर्म्स, हार्मफुल केमिकल से भी फ्री होता है. नाउ फॉर बिग सिटीज, अब बड़े बड़ी सिटीज, रिवर्स एंड लेक्स जो है यहाँ पे, मतलब सॉरी, फॉर बिग सिटीज, बड़ी सिटीज के लिए रिवर्स एंड जो लेक्स होती हैं वो सोर्सेज होती हैं ऑफ वाटर. एंड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, एंड कुछ सालों के अंदर, लास्ट फ्यू डिकेड्स में जो वाटर की क्वालिटी है काफी सारी रिवर्स एंड लेक्स में वो डिटेरोइट हो चुकी है. ओके, एंड द वाटर हैज बिकम अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. दिस इज व्हाट इज नोन एज वाटर. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाटर पॉल्यूटेंट्स. तो जितने भी अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जिसके थ्रू वाटर पोल्यूट होता है, ओके, उन्हें क्या कहा जाता है? वाटर पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है. एज वी हैव डिस्कस इन द एयर पॉल्यूटेंट्स, जितने भी सब्सटेंसेस, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस थे जो कि एयर को पोल्यूट करते थे, दे वर नोन एज एयर पॉल्यूटेंट्स. सो सिमिलरली द अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस व्हिच पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स. Okay, example, sewage, industrial waste, synthetic detergent, chemical fertilizer, oil, heavy metal, radioactive waste, etc. These all are the different water pollution. The causes of water pollution. अब जो main reasons है यहाँ पे for the pollution of water in rivers and lakes have been discussed below. Number 1, discharge of toxic industrial waste into rivers and lakes. जितना भी टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको डायरेक्टली बिना ट्रीट किए, बिना डिसइंफेक्ट किए रिवर्स एंड लेक्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, विच कॉजेज वाटर पोल्यूशन. देन एक्सेसिव यूज ऑफ, हम एग्रीकल्चर में जो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज करते हैं, इट ऑल्सो कॉजेज वाटर पोल्यूशन. डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज, जो डोमेस्टिक सीवेज है उसको अनट्रीट किए बिना, ट्रीट किए बिना जो डिस्चार्ज कर दिया जाता है इनटू रिवर्स एंड लेक्स, इट इज आल्सो अ मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ वाटर. अनट्रीटेड सीवेज के अंदर फूड वेस्टेज होते हैं, डिटर्जेंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ओके, एंड पैरासाइट्स आल्सो. एंड दीज ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये सभी माइक्रोऑर्गेनिज्म कुछ वाटर बॉर्न डिजीजेस कॉज करते हैं लाइक कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा. कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज, अब ये जो वाटर बॉडीज का कंटेमिनेशन हो रहा है टॉक्सिक मेटल से, जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी, निकल एक्सेट्रा, दीज आल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन. द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स, इन सभी पॉल्यूटेंट्स का जो प्रेजेंस है जैसे कि एसिड, एल्कलीज, डाइज एक्सेट्रा, ये सभी वाटर के कलर को चेंज कर देते हैं, उसमें से फोल स्मेल आने लगती है एंड द वाटर बिकम्स बैड इन टेस्ट आल्सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज वाटर. नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम. नंबर 1, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द वाटर कंटेन अ लॉट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट मेक वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड बेथिंग. तो जितना भी ये इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना ट्रीट किए डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, तो इनके अंदर काफी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं एंड ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस वाटर को अनफिट बनाते हैं फॉर द ड्रिंकिंग एंड फॉर द बेथिंग पर्पस. अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज, अब जितना भी स्टूडेंट्स अनट्रीटेड यानी कि जिसको हम बिना डिसइंफेक्ट किए, उसके अंदर सारे इन्फेक्टेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ऐसे डोमेस्टिक सीवेज को बिना ट्रीट किए जब वाटर बॉडीज में रिलीज करा जाता है एंड ये क्या करते हैं, वहां पे क्या बना लेते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड बना लेते हैं टू अ नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेस. पोल्यूटेड वाटर के अंदर स्टूडेंट्स काफी सारे डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, एंड इनके थ्रू वाटर बॉर्न डिजीजेस होती है लाइक टाइफाइड, कॉलरा, डाइसेंट्री, जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस. एसिड एंड एल्कलीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर जितना भी एसिड एंड एल्कलीज प्रेजेंट है, ये क्या करती हैं, दे किल दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच आर द नेचुरल क्लीजिंग एजेंट ऑफ वाटर. ये सारे एसिड एंड एल्कलीज पानी के अंदर जाके उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर देते हैं जो कि नेचुरल क्लीजिंग एजेंट होते हैं ऑफ वाटर, जिससे जो सेल्फ प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है वाटर बॉडीज का लाइक रिवर एंड लेक वो हिंडर होता है. नेक्स्ट, एन इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक एडवर्स इफेक्ट जो वाटर पोल्यूशन का है, दैट इज यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज. यानी कि वाटर बॉडीज का यूट्रोफिकेशन होना भी क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है ऑफ वाटर पोल्यूशन. ओके, वॉशिंग अवे ऑफ रेसिडुअल फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडीज. एक्चुअल में जितना भी रेसिडुअल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको जब वाटर बॉडीज में क्या कर दिया जाता है, वॉश अवे कर दिया जाता है बाय द रेन, इससे वहां पे वीड्स की फास्टर ग्रोथ होने लगती है एंड ये वीड्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को वाटर में से
कंज्यूम करते हैं, ओके, एंड इससे वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है एंड इट मे कॉज डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल ऑल्सो. So this loss of oxygen from water in water bodies is called eutrophication. So इस तरीके से water bodies के अंदर water का loss होना due to these water pollutants is known as eutrophication. Now prevention of water pollution. अब water pollution को कैसे prevent किया जा सकता है? How it can be prevented or reduced? For that they have given you some suggestions. Number 1, do not throw the garbage into rivers and lakes. Rivers and lakes में हमें कभी भी क्या garbage throw नहीं करना चाहिए and the rivers and lakes should be cleaned from time to time. Next, the city sewage को treat किया जाना चाहिए एक sewage treatment plant पे to remove the pollutants before discharging into them water bodies. Next, toxic industrial waste. जितना भी industrial waste है जो कि toxic होता है इसको हमें chemically treat करना चाहिए so that उसमें से harmful substances को remove किया जा सके before discharging them into water bodies. Next, we should not wash clothes. हमें कभी भी किसी भी source of water के आसपास कभी wash नहीं करने चाहिए clothes को और we should not never clean the utensils and also we should not take bath near the source of water. Trees must be planted. Water bodies के आसपास हमें trees plant करने चाहिए more and more. Then excessive use of fertilizer and pesticides का जो excessive use है in the agriculture, it must. Potable or drinking water. As I told you, drinking water or the potable water will be what? It will be colorless, tasteless and odorless. It will also be free from any suspended impurities, harmful chemicals and germs. Such kind of water is known as potable or drinking water. Now purification of water at home. अब कैसे water को घर पे purify किया जाता है? So they have given you the different methods for that. Number 1, by filtration. So कोई भी suspended impurity जो कि आपकी water में होती है, पानी के अंदर होती है और वो पानी अगर आप किसी well, river और lake से लाए हो तो उसकी सस्पेंडेड इम्प्योरिटी को आप रिमूव कर सकते हो बाय फिल्टरिंग. उसको फिल्टर करके किसके थ्रू? एक फाइन मुस्लिन क्लॉथ होता है जिसके थ्रू आप उसे फिल्टर कर सकते हैं सो दैट जितना भी ग्रेवल, सैंड, चारकोल है वो सभी आपका रिमूव हो जाएगा. और फॉर दैट पर्पस यू कैन ऑल्सो यूज द वाटर फिल्टर्स. नेक्स्ट वी हैव बॉइलिंग. ओके, फिल्टर्ड वाटर. उसके बाद जो फिल्टर्ड वाटर है उसको जर्म फ्री बनाया जाता है बाय बॉइलिंग इट. उसको बॉइल करके फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट्स एंड उसके बाद उसको यूज करने से पहले कूल डाउन किया जा सकता है. So these are the methods of purifying water at home. Now purification of water at sea level. अब city level. अब city level पे कैसे water को purify किया जाता है? So at a city level पे जो waste water का treatment होता है वो एक बहुत बड़े scale पे किया जाता है. The entire setup for the purification of water is called waste water treatment plant for a sewage plant. So पूरा जो setup होता है water को purify करने के लिए at the city level उसे कहा जाता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दैट इज WWTP और सीवेज प्लांट. ओके, सो देयर आर 3 प्रोसेसेस. सो मेजरली 3 प्रोसेसेस है जो वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए किए जाते हैं. ओके, बिफोर इट इज डिस्चार्ज इनटू द वाटर रिजर्वॉयर. वाटर रिजर्वॉयर्स में उनको डिस्चार्ज करने से पहले 3 प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू हमें वेस्ट वाटर को ट्रीट करना होता है. So ये 3 processes क्या हैं? Number 1, primary treatment, other is secondary and the third is tertiary treatment. First of all, we are going to talk about primary treatment. So primary treatment क्या है? It is a mechanical process which involves screening and settling of large particle. पानी के अंदर उस वेस्ट वाटर के अंदर जितने भी लार्ज पार्टिकल्स है उनको स्क्रीन करना, उनको सेटल डाउन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट कहलाता है. सो इसमें स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? जो वेस्ट वाटर है या जो सीवेज है उसको पास किया जाता है थ्रू बार स्क्रीन. अब बार स्क्रीन में जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक रैक, कैन, प्लास्टिक बैग, नैपकिन, स्टिक, दे ऑल गेट रिमूव्ड. ओके, आफ्टर दिस उसके बाद सीवेज फ्लो थ्रू अ लॉन्ग चैनल. सीवेज को एक लॉन्ग चैनल के थ्रू पास किया जाता है जिसे आप ग्रिड चैम्बर कहते हो. ग्रिड चैम्बर के अंदर जितने भी सैंड एंड ग्रिट है इट ऑल गेट सेटल डाउन एंड इट रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम. एंड सैंड एंड ग्रिट को फिर यूज किया जाता है एज अ लैंडफिल. द लिक्विड मटेरियल, फिर उस लिक्विड मटेरियल को हम ह्यूज सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू पास करते हैं. द सॉलिड वेस्ट, उसके बाद जितना भी सॉलिड वेस्ट है लाइक फीसेस, दे ऑल गेट सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ द टैंक एंड फिर उनको रिमूव किया जाता है स्क्रैपर के थ्रू. इसे कहा जाता है स्लज. फिर इस स्लज को हम क्या बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं. एंड जितने भी लाइट मेटल्स हैं दे फ्लोट ऑन टॉप, वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं, उन्हें कहा जाता है स्कम. एंड स्कम को रिमूव किया जाता है एक स्किमर की हेल्प. So this was all which is done in the primary treatment. Now secondary treatment. Secondary treatment क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे स्लज के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है इसको ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया.
देन द वाटर फ्लोज इनटू एन एरेशन टैंक, उसके बाद वाटर को एक एरेशन टैंक में डाला जाता है जहाँ पे लार्ज एयर ब्लोअर्स होते हैं जो क्या करते हैं, दे बबल एयर थ्रू द वाटर एंड इसके थ्रू जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है एंड वो सारे ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स को कंज्यूम करता है सच एज फीसेस एंड द फूड वेस्ट स्टिल लेफ्ट इन द। नेक्स्ट वी हैव टर्शरी ट्रीटमेंट, ट्रीटेड वाटर। अब इसके बाद जितना भी ट्रीटेड वाटर है, अब इसको हम केमिकल ट्रीटमेंट में, द वाटर इज डिसइंफेक्टेड, अब वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है कुछ केमिकल्स के थ्रू लाइक क्लोरीन, और इट मे बी एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेज, और उसको अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू भी एक्सपोज किया जा सकता है सो दैट उसमें जितने भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है दे ऑल गेट किल्ड, ओके। एंड इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड, एंड चाहो तो आप इस वाटर को ओजोन गैस के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। See, they have given you a schematic diagram of a wastewater treatment plant. Okay, this is primary treatment. See, this is the wastewater treatment plant. Okay, यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइमरी ट्रीटमेंट था, फर्स्ट स्टेज, ये मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट आपका सेकेंड स्टेज है जहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एंड टर्शरी ट्रीटमेंट इज द थर्ड स्टेज जहाँ पे हम केमिकल प्रोसेसिंग करते हैं, एंड देन वी गेट द ट्रीटेड water or the disinfected. Next we have the Ganga river. Ganga is one of the most sacred rivers of Bharat. भारत की एक sacred rivers में से एक है गंगा, and millions of people, कई मिलियन ऑफ पीपल है जो कि इसी के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड के लिए। गंगा हैज बीन पॉल्यूटेड, अब गंगा को कई सालों से पॉल्यूट किया जा रहा है। द पीपल लिविंग नियर द गंगा, वो सारे लोग जो नियर द गंगा रहते हैं, रिवर, गंगा रिवर के नियर रहते हैं, आसपास रहते हैं, वो काफी लार्ज क्वांटिटी में गार्बेज, डेड बॉडीज, फ्लावर, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, okay, and then what idols of gods and goddesses, polythene bag, many other materials, यानी कि ये सारे तरीके के डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट है जो कि लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, गंगा रिवर के अंदर डायरेक्टली थ्रो कर दिया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द गंगा रिवर इज गेटिंग पॉल्यूटेड डे बाय डे। द गंगा इज मोस्ट पॉल्यूटेड, सबसे ज्यादा जो पॉल्यूटेड है गंगा वो कहाँ है, कानपुर में है। द टैनरी इंडस्ट्रीज, जो टैनरी इंडस्ट्रीज है वो गंगा को पॉल्यूटेड बना रही है टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। गंगा is one of the 10 most endangered rivers in the world. गंगा जो 10 endangered rivers है पूरे वर्ल्ड में उनमें से एक है। So to prevent गंगा from pollution, अब गंगा को pollution से बचाने के लिए जो गंगा एक्शन प्लान है that is GAP, इसको लॉन्च किया गया भारत में in 1985, and इस प्रोजेक्ट का मेन एम क्या है, to reduce the pollution level in the river. Pollution control activities included under the project. अब इस प्रोजेक्ट के अंडर, GAP प्रोजेक्ट के अंदर क्या पोल्यूशन कंट्रोल एक्टिविटीज को लिया जा रहा है। नंबर 1, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट किया जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके अंदर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को इंस्टॉल किया जाएगा। इंस्टॉलेशन ऑफ रिवर फ्रंट, डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट, प्रोविजन ऑफ लो कॉस्ट सैनिटरी फैसिलिटीज एंड टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। दीज आर द एक्टिविटीज, pollution control activities which must be undertaken under this project. This program has to a great extent helped reduce pollution, although we still have a long way to go before the river Ganga is absolutely free of pollution. So students, इस प्रोग्राम के थ्रू काफी हद तक जो है गंगा रिवर के अंदर पोल्यूशन रिड्यूस हुआ है, बट स्टिल अभी भी हमें बहुत सारा प्लान एंड एक्शंस लेने हैं गंगा रिवर को एब्सोल्युटली यानी कि प्योरली फ्री बनाने के लिए फ्रॉम द पोल्यूशन। इंडियन गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च करी, दैट इज नमामि गंगे स्कीम। कब? इन द ईयर 2014 में, टू प्योरीफाई रिवर गंगा, क्या करने के लिए, रिवर गंगा को प्योरीफाई करने के लिए, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द फर्दर पोल्यूशन। सो द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड ओवर हियर। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द डिटेल्ड कंसेप्ट ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन इन दिस चैप्टर। Let's meet very soon in the next class with more new and exciting topics. Till then, take care and thanks to everyone.